Hello children, how are you? I hope you are keeping fine. We have met after a long time, na? Actually, we were waiting for the books to be distributed. I hope you all have got your books. Let me know if some of you are still left to get the books. If you have not got your books, go and purchase it from school. It is still available in the school. For 3 days, I think it will be available in the school. Okay. So that if you will get your books, this learning will be more easier for you, because you will be able to solve the objectives as well in the books, because after doing the question answers we will move towards the objectives. I will give you the objectives. I will send you the solved objectives in the form of PDF, so that you can do it in your books. Okay. So we have done the first chapter, invention of shoes. I hope you have all written the question answers also. Now for poem books, you need to write the poem in your copy, and in the adjacent page, means the previous page, you will draw the diagram, draw the picture of a book, okay, or a boy or a girl reading a book, okay. Draw the picture, color it, it will look nice, your copy will look nice, and you will get to enhance your creativity, okay. And then alongside, means in the next page, you write the poem books in neat and good handwriting, and follow the pattern of the poem as it is given in the book. Write the name of the poet. Thereafter, I am sending you the PDF of the question answers along with the video, because some of you have complained, some of you have commented on the comment box that you are unable to open the PDF. I do not know why you are unable to open the PDF, because it is so easy, but I think due to some network issues you are unable to open the PDF. So I am, for your benefit, for your so that you can solve the question answers easily, you will be able to do the question answers easily. For your benefit, I am sending you the video of the question answers, so that you can take a screenshot from here and you can solve the question answers. You can write the question answers in your copy, in your notebook. Okay. So here is the question answers. First you will follow the same pattern. In the first line you will write poem, then leave a line and write books, which is the title of the poem. Thereafter write the name of the poet, okay. Then leave 3 lines and write understanding the poem. Then leave 1 more line and write the context which is given in your book, okay. From your book I have solved the question answers, okay. I have written the questions and answers as well, okay. So if some of you do not have the books till now also, you can solve the question answers, because it is as it is mentioned in your book. The room we sit in melts away. Why does the room melt away? रूम क्यों डिसअपियर हो जाता है? मेल्ट अवे यानी डिसअपियर होना. The room melts away because as we read the books or look at the pictures, we get carried away to an imaginative world where we get so much engrossed. Engrossed मतलब डूब जाना. That we tend to forget the room we are in. रूम क्यों डिसअपियर हो जाता है? रूम इसलिए डिसअपियर हो जाता है क्योंकि जब भी हम किताबें पढ़ते हैं या हम उनमें छपे पिक्चरों को देखते हैं,
तो हम उनमें उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं, और हम वो अपनी जो वास्तविक दुनिया है जहाँ पे हम होते हैं, जिस रूम में हम बुक पढ़ रहे होते हैं, उस रूम को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग उसे भूल जाते हैं और उस दुनिया में, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं। ओके, सो सी आई एम not moving fast, so that you can easily take a screenshot from here and you can write the question answers. Okay, and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend. ठीक है, ये पोएम का लाइन्स है। फिर where does the chosen friend come from? chosen friend कहाँ से आता है? chosen friend उस इमेजिनेटिव और फिक्टिशियस वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर से आता है। फिक्टिशियस यानी जो रियल नहीं होता है। ठीक है, जो कैरेक्टर उस बुक में हम पढ़ते हैं उसी से वो चोज़न फ्रेंड आता है। जैसे हम डोरेमोन देखते हैं, ठीक है, कार्टून देखते हैं, तो डोरेमोन और नोबिता कुछ देर के लिए हमारे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर के लिए हम इनफैक्ट अपने आप को नोबिता इमेजिन करने लगते हैं और हमारे भाई बहनों को डोरेमोन बना देते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, और या तो फिर हम खुद डोरेमोन बन जाते हैं और अपने भाई बहनों को या फिर अपने दोस्तों को नोबिता इमेजिन करने लगते हैं और हम भी उस कैरेक्टर में शामिल हो जाते हैं। वैसे ही हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई पढ़ रहे हो, तो आप खुद कुछ देर के लिए खुद को महाराणा प्रताप इमेजिन करने लगोगे और या रानी लक्ष्मीबाई इमेजिन करने लगोगे, है ना, क्योंकि आप उसमें इतना डूब जाते हो, इतना ये आप उसमें उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बह जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता है कि आप असली में जो हो वो रीडर हो, बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, और या फिर वो उस किताब के कैरेक्टर आपके मित्र बन जाते हैं, आपके फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, हाउ डज दिस पर्सन और थिंग बिकम अ स्पेशल फ्रेंड? ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन जो बुक में मेंशन किया गया है या जो चीज़ बुक में मेंशन की गई है, वो हमारा स्पेशल फ्रेंड कैसे बन जाता है? क्योंकि जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ उसके जो कैरेक्टर में कुछ जो उसके गुण हैं वो हमको इतने भा जाते हैं, इतने पसंद आ जाते हैं कि हमारा वो स्पेशल फ्रेंड बन जाता है ना। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज़ हो या किसी भी वर्ड में आपको कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर स्कूल खुलने पे भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि जब भी आपका स्कूल खुलेगा, आपके क्लासेस चलेंगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा इन चैप्टर सबका आपको रिवीजन करवा दूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले इसे लिखना होगा। आप ये मत सोचना कि स्कूल खुलने के बाद हम लिख लेंगे, क्योंकि बच्चों अभी कोई ठिकाना नहीं है स्कूल कब खुलेगी, और फिर हो सकता है कि स्कूल खुलते ही आपके कुछ 1-2 वीक बाद आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाए, तो फिर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने नोटबुक्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आप पढ़ते रहो, लर्न करते रहो, और जब भी स्कूल खुलेगी तो आप अपने डाउट्स कहीं पे एक डायरी में या एक रफ कॉपी में या फिर अपने कॉपी के ही लास्ट पेज में या कहीं पे भी आप उसको लिख लो कि कहाँ आपको डाउट है। आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी। ओके, और फिर ये और वी सेल along the page to some other land or age, what is the feeling conveyed when the speaker uses the word sail? सेल का क्या मतलब है? सेल यानी द फीलिंग ऑफ ईज एंड स्मूथनेस, बहुत ही आसानी से बह जाना। ठीक है,
बहुत ही आसानी से हम बह के उस दुनिया में चले जाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप यहाँ से आसानी से लिख सको। ठीक है, आप भी पॉज करके लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Here is our body in the chair, but our mind is over there. Where is the mind at this point? Mind कहाँ पे है? Mind उस लैंड में है और उस टाइम में है जहाँ जिसकी की बातें मेंशन की गई है। ठीक है, किताब में। ठीक है। Why is there a distance between the mind and the body? माइंड और बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि बॉडी जो हमारा है वो उस रूम में है, उस चेयर पे है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन माइंड कहाँ है? माइंड उस दुनिया में चला गया है, उस लैंड में चला गया है, उस एज में चला गया है जिसके बारे में हम किताब में पढ़ रहे हैं। ठीक है। What kind of feeling is this? Does it make you feel uncomfortable or happy? This is a feeling of fantasy and all bibliophiles. Bibliophiles यानी जो बुक लवर होते हैं, जो किताबों से प्यार करते हैं, जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। ये फीलिंग ऑफ फैंटासी है। फैंटासी यानी सपने देखना, ख्वाबों की दुनिया में रहना। ठीक है, और ये बुक लवर्स इस फीलिंग को बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। इट मेक्स अस फील हैप्पी, क्योंकि हम भी रीडर हैं, हम भी किताबों के प्रेमी हैं, तो इसलिए हमें ये फीलिंग बहुत पसंद है। हमें ये फीलिंग खुश करता है, खुशी देता है। Each book is a magic box. Why does the speaker refer to book as a magic box? बुक मैजिक बॉक्स क्यों कहा जाता है बुक को? क्योंकि वो एक हमें वंडरस वर्ल्ड में ले जाता है, एक वंडरफुल दुनिया में ले जाता है, एक बहुत ही फैंटेसाइज्ड वर्ल्ड में ले जाता है, जो कि हमारे सिर्फ फैंटेसी में होता है, जो कि हम सोचते हैं कि जहाँ हम जा सकते हैं, पर हम नहीं, वास्तविकता में वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो हमें यथार्थ की दुनिया से परे ले जाता है। और दुनिया भर के एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे हम कभी फोक टेल्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसे मैजिकल बुक्स के बारे में, या फिर कोई भी आप ले लो कि कोई भी नॉवेल वगैरह पढ़ते हो या पंचतंत्र पढ़ते हो, तो आप उसी दुनिया में चले जाते हो। आप अपनी इस दुनिया को भूल के उस दुनिया में चले जाते हो जो कि वास्तविकता में नहीं होती है। ठीक है, और उस दुनिया में आपको बहुत अच्छा लगता है ना। Why does the speaker convince that reading books is a magical experience? Reading books is a magical experience because it introduces the reader to new ideas and experiences. क्योंकि हमें नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नए आइडियाज़ मिलते हैं बुक्स पढ़ने से। हमारा इमेजिनेशन बिल्डअप होता है, हमारी काल्पनिक शक्ति बढ़ती है, हम नई दुनिया में जाते हैं, नई दुनिया को देखते हैं, या अपने इमेजिनेशन में ही देखते हैं, पर वो हमें अच्छा लगता है। और हम लोग सिर्फ अपने घर में बैठे बैठे बिना खर्च किए, बिना संघर्ष किए हुए उस काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि हमें कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता, बस किताबों के माध्यम से हम ऐसी एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसकी कि सिर्फ हमें इच्छा होती है, पर हम उस दुनिया में जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। वैसी एक दुनिया में हमें ये किताबें ले जाती हैं। ठीक है, appreciating the poem. What words and images does the speaker use to suggest that books can take their readers on a journey? अब कौन से वर्ड्स स्पीकर यूज़ कर रहा है? जैसे वर्ड्स ऑफ वंडर, है ना,
न्यू आइडियाज़, फैंसीज यानी इमेजिनेशंस, फिर मैजिक बॉक्स और इमेजेस, रूम वी सिट इन, वी सेल अलॉन्ग द पेज, आवर बॉडी इन द चेयर, आवर माइंड इज़ ओवर देयर, है ना। ऐसे लगता है कि ये इमेजेस है, हमें दिख रहा है कि रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, ऐसा लग रहा है कि हम रूम में बैठे हुए हैं, वो हमें दिख रहा है, इसलिए ये इमेजेस है। वी सेल अलॉन्ग द पेज, ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस पेज के साथ बहते जा रहे हैं, हर एक बढ़ते पेज के साथ हम भी उस काल्पनिक दुनिया में बहते जा रहे हैं। आवर बॉडी इन द चेयर, ये सब एक इमेजेस फॉर्म करता है ना। तो यही सब सजेस्ट करता है कि बुक्स कैन टेक द रीडर्स ऑन अ जर्नी, बुक्स हमें एक लंबे सफ़र पे ले जा सकता है ना। वाई डू यू थिंक द स्पीकर यूजेज द वर्ड्स वी एंड आवर एंड नॉट मी एंड माई? वी एंड आवर क्यों यूज़ करता है, मी एंड माई क्यों नहीं? मी एंड माई इसलिए नहीं क्योंकि जैसे एलियनोर फर्जियन एक बुक रीडर है, एक बुक लवर है, वैसे ही उनकी तरह न्यूमरस बुक लवर्स हैं, बहुत सारे बुक लवर्स हैं। हम भी बुक लवर हैं, आप भी बुक लवर हो, आप भी किताबें पढ़ते हो, हम भी किताबें पढ़ते हैं, हमें भी बुक से प्यार है, आपको भी बुक से प्यार है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किताबों से प्यार है ना। द स्पीकर यूजेज द वर्ड्स वी एंड आवर टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एक्सपीरियंस्ड बाय न्यूमरस बुक लवर्स लाइक हिम। Okay. So we have completed the question answers. Okay, you can either take a screenshot from here and solve your question answers, or you can refer to the PDF. If your PDF is opening, you are able to open the PDF, then you can refer to the PDF. Okay, and if you have any doubts or queries, you can just mention it in the comment box. Okay, so thank you, and our next video will be, I will be reading, we will be moving to the next chapter, that is Ivan's story. Okay, so bye till then. Take care of yourselves, listen to your parents, obey your parents, and also concentrate on your studies. Okay, take care of yourselves. Okay, bye.